Hello everyone, welcome back again. So students, today in this session we will do your exercise 11.3, your chapter number 11, perimeter and area, and today we will do exercise 11.3. So before starting this exercise, just discuss some points, and our first point is circle. Okay, you already know what is the meaning of circle. Okay, and here we have one center and the distance from the center to the circle, that's called your radius. Okay, आपके center से आपके circle तक की जो distance होती है उसे हम कहते हैं radius, and आपकी वो chord जो आपके center से होकर जाती है that is your diameter. ओके, ऐसी chord जो आपके सर्कल के सेंटर से होकर जाती है that is your diameter, and in your diameter we are including टू रेडियस. आपके एक डायमीटर में दो रेडियस होती है. बेसिकली योर डायमीटर इज़ ट्वाइस ऑफ द रेडियस. आपका जो डायमीटर है वो रेडियस का डबल है, एंड आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि आपकी रेडियस जो है वो डायमीटर की हाफ होती है. क्लियर? आपके सर्कल में आपका डायमीटर आपके सेंटर से होकर जाता है, इसमें टोटल टू रेडियस होती हैं. सो आपका एक डायमीटर आपके दो रेडियस के बराबर होता है, और आप ये भी कह सकते हैं कि एक रेडियस आपके डायमीटर की हाफ है. एंड आपके सर्कल के सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला होता है 2πr, एंड सर्कल का रेडियस दैट इज πr स्क्वायर, वेयर r इज रेडियस. सो लेट्स स्टार्ट योर क्वेश्चन नंबर 1, एंड योर क्वेश्चन नंबर 1 इज find the circumference of the circle with the following radius. So here your radius is already given. So here your radius is already given, and with the help of it you have to find out the circumference of these circles. So as you know that the formula of the circumference is 2πr. आपके फॉर्मूला होता है 2πr, वेयर पाई इज इक्वल्स टू 22/7, जहाँ पे पाई की वैल्यू है 22/7. सो नाउ पुट ऑल द वैल्यूज इन द फॉर्मूला. 2 की जगह आपका आएगा 2, इन प्लेस ऑफ पाई जस्ट राइट 22/7, एंड r की जगह आप लिखेंगे 14. नाउ सॉल्व इट. 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 2 2 जा 4, and 4 2 जा 8, 4 2 जा 8. So our total answer is 88 centimeter. Do it again. 7 1 जा 7, 7 2 जा 14. Okay. Now 2 22 जा 44, and 44 22 जा that is 88. So if you have radius 14 centimeter, it means your circumference is 88 centimeter. Now next is 28 millimeter. So now this time your radius is 28 millimeter. So in place of r just write 28. Simple. So 7 1 जा 7, 7 4 जा 28. Now 4 2 जा 8. Okay, 4 2 जा आपका 8 हो जाएगा. 22 multiply by 8 that is equals to 176. So here your area, so here your circumference is 176 millimeter. Now third one is 21 centimeter. So in place of r put 21. So in place of r put 21. 7 1 जा 7, 7 3 जा 21. Now 3 2 जा 6, and 6 multiply by 22 that is equals to 132 centimeter. So this time your circumference is 132 centimeter. Now next question is find the area of the following circle given that. So here you have radius, again you have radius and diameter, but this time you have to find out areas, and formula of the area is pi r square. Clear? आपका जो circumference है उसका formula होगा 2πr, and for area your formula is pi r square, where r is your radius. So now this time you have your radius that is 14 millimeter. आपकी जो radius है वो है 14 millimeter. So in place of r just write 14. Pi r square. So pi, value of pi is 22/7, r आपका है 14, and 14 का square 14 multiply by 14. Now 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 14 2 जा 28, and 28 multiply by 22 that is equals to 616. So this time your area is 616 millimeter square. आपकी यूनिट है मिलीमीटर, तो यहाँ आ जाएगा आपका मिलीमीटर स्क्वायर. नेक्स्ट दिस टाइम यू हैव डायामीटर. आपके पास डायामीटर है. सो एज यू नो दैट रेडियस इज हाफ ऑफ द डायामीटर. ओके, एंड फॉर्मूले में रेडियस है तो हम डायामीटर पुट नहीं कर सकते हैं. सो सबसे पहले हम निकालेंगे डायामीटर की से. तो सबसे पहले हम डायामीटर से रेडियस फाइंड आउट करेंगे.
सो हेयर योर डायमीटर इज़ 49, सो योर रेडियस इज़ 49/2. अगर आपका डायमीटर 49 है सो आपकी रेडियस होगी डायमीटर का हाफ, सो दैट इज़ 49/2. सो इन प्लेस ऑफ r just put 49/2. So now your formula is pi r square. Pi r square means 49/2 का स्क्वायर, 49/2, 49/2. Now 7 ones are 7, 7 sevens are 49, 2 11s are 22. So now you have 11 multiplied by 7 multiplied by 49/2. Okay, 7 multiplied by 11, 77 multiplied by 49/2. Now multiply 77 by 49 and divided by 2. So your answer is 1886.5 meter square. Next you have radius 5 centimeter. So in place of r just write 5. So pi r square means 5 into 5. Okay, 5 5s are 25 एंड 25 को मल्टीप्लाई करेंगे आप 22 से. ओके, एंड डिवाइड करेंगे 7 से. सो हेयर यू विल गेट 550 डिवाइडेड बाय 7 एंड व्हेन यू डिवाइड 550 बाय 7 यू विल गेट 78.557 centimeter. Now come to the next question, and that is your question number 3. If the circumference of a circular sheet is 154 meter, आपके पास एक सर्कुलर शीट है जिसका सर्कमफेरेंस है 154 मीटर. क्लियर? फाइंड इट्स रेडियस. सो दिस टाइम यू हैव टू फाइंड आउट द रेडियस. आपके पास सर्कमफेरेंस है, आपको रेडियस निकालनी है. सो एज यू नो दैट सर्कमफेरेंस इज 2 पाई आर. ओके, एंड सर्कमफेरेंस आपको ऑलरेडी गिवन है, सो आप इसको रखेंगे इक्वेशन में. 2 पाई को शिफ्ट करेंगे दूसरी साइड में और आर की वैल्यू आपको फाइंड आउट हो जाएगी. ओके, सो हेयर योर फॉर्मूला इज 2 पाई आर. 2 पाई आर इज इक्वल टू 154 बिकॉज एज इज ऑलरेडी गिवन हेयर योर सर्कमफेरेंस इज 154 मीटर. नाउ पुट द वैल्यू ऑफ पाई. सो पाई इज इक्वल टू 22/7. सो आपका 7 है डिवाइड में, जब आप इसको शिफ्ट करेंगे ये चला जाएगा आपका मल्टीप्लाई में. आपका 2 and 22 है मल्टीप्लाई में, सो आपका आ जाएगा डिवाइड में. सो आपकी इक्वेशन हो जाएगी 154 7/44. ओके, 2 2s are 4, 2 2s are 4, 2 7s are 14, 2 7s are 14, 11 2s are 22 and 11 7s are 77. So you have 7 multiplied by 7, that is 49, and 2 का आपका आ जाएगा 2. So your answer is 49/2, that is equals to 24.5. So your radius is 24.5 meter. आपकी जो रेडियस है वो है 24.5 मीटर. नाउ यू हैव टू फाइंड आउट द एरिया. सो आप एरिया में रख देंगे आर की जगह 24.5. सो योर फॉर्मूला इज हियर पाई आर स्क्वायर 22/7 मल्टीप्लाई बाय आर स्क्वायर. आर की जगह हम लिख देंगे 24.5 एंड यू कैन पुट 49/2 ऑल्सो. ओके, सो जब आप आर की जगह रखेंगे 24.5 से हो जाएगा आपका 22/7 मल्टीप्लाई बाय 24.5 मल्टीप्लाई 24.5 एंड जब आप इसको सॉल्व करेंगे सो आपका आंसर होगा 1886.5 मीटर स्क्वायर. ओके, now come to the next question, that is your question number 4. A gardener want to fence a circular garden of a diameter 21 meter. एक गार्डनर है, वो एक सर्कुलर गार्डन में फेंसिंग करना चाहते हैं. ओके, जिसका डायमीटर है 21 मीटर. क्लियर? वो जो गार्डन है वो सर्कुलर है, वो उसके चारों तरफ फेंसिंग करना चाहते हैं और गार्डन का डायमीटर है 21 मीटर. So you have to find out the length of the rope he needs to purchase. आपको वो लेंथ निकालनी है रोप की जिसको वो परचेस करे उसको फेंसिंग के लिए. क्लियर? इफ़ ही मेक्स 2 राउंड ऑफ फेंसेस. अब वो एक बार में उसकी फेंसिंग नहीं करना चाहते हैं, वो 2 रोप से 2 टाइम्स में उसकी फेंसिंग करना चाहते हैं. क्लियर? तो गार्डनर हैं वो गार्डन को 2 डबल रोप से उसकी फेंसिंग करना चाहते हैं. क्लियर? सो अब आपको फाइंड आउट करना है कि उनको कितनी रोप परचेस करनी है. ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ द रोप. अब आपको रोप की कॉस्ट भी निकालनी है. इफ़ 1 मीटर इज़ 4 रुपीज़. अगर आपकी 1 मीटर रोप 4 रुपीज़ की है तो आपको उसकी कॉस्ट भी फाइंड आउट करनी है. क्लियर? सो बेसिकली आपके पास है एक गार्डन जिसका डायमीटर है 21. सबसे पहले हम उसका सर्कमफेरेंस निकालेंगे, फिर उसके सर्कमफेरेंस को मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे क्योंकि वो उसको डबल रोप से फेंसिंग करना चाहते हैं. क्लियर? सो फर्स्ट जस्ट फाइंड आउट द सर्कमफेरेंस. क्लियर? सो फॉर द सर्कमफेरेंस वी रिक्वायर रेडियस. सो हम डायमीटर को कर देंगे हाफ. सो इफ़ योर डायमीटर इज़ 21 मीटर सो योर रेडियस इज़ 21/2.
2। ओके, अगर आपका डायमीटर 21 है तो रेडियस होगी 21/2। अब उसको हम फॉर्मूले में पुट करेंगे। योर फॉर्मूला इज 2πr। So in place of pi write 22/7, in place of r write 21/2. Now 7 1s are 7, 7 3s are 21, 2 cancel out, 22 3s are that is 66. So our circumference is 66 meter. It means अगर आप उसकी एक बार फेंसिंग करना चाहते हैं तो उन्हें 66 मीटर की रोप चाहिए, बट उन्हें एक बार नहीं 2 बार डबल रोप से फेंसिंग करनी है। तो हम इसको डबल करेंगे। 2 multiplied by 66 that is 132 मीटर। इट मीन्स उन्हें फेंसिंग के लिए 132 मीटर की रोप चाहिए। ओके, सो आपकी रोप हमें मिल गई है। अब 1 मीटर है 4 रुपीज़ की। सो 132 रोप 32 मीटर कितने की होगी? 132 को मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से। सो योर फाइनल आंसर इज़ 528। Now come to the next question, and that is your question number 5. From a circular sheet of radius 4 centimeter, आपके पास सर्कुलर शीट है जिसकी रेडियस है 4 सेंटीमीटर। अ सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर इज रिमूव्ड। इसमें से एक 3 सेंटीमीटर के रेडियस का सर्कल रिमूव कर लिया जाता है। फाइंड द एरिया ऑफ रिमेनिंग शीट। तो जो रिमेनिंग शीट बच गई है आपको उसका एरिया फाइंड आउट करना है। सो बेसिकली क्वेश्चन ये है कि आपके पास एक सर्कुलर शीट थी, क्लियर, जिसका रेडियस थी 4 सेंटीमीटर। अब उसके अंदर एक 3 सेंटीमीटर का सर्कल बनाया गया और उसको रिमूव करके निकाल लिया गया। अब आपकी बची हुई शीट कुछ ऐसी है, ठीक है। सो आपको इसका अब एरिया फाइंड आउट करना है। सो इज़ इट पॉसिबल टू फाइंड आउट दैट? यस। सबसे पहले आप बड़े सर्कल का एरिया फाइंड आउट करेंगे, क्लियर। अब आपके इस बड़े सर्कल्स में से छोटा सर्कल जिसका एरिया आप फाइंड आउट करेंगे उसको रिमूव कर देंगे, क्लियर। सबसे पहले हम बड़े सर्कल का एरिया फाइंड आउट करेंगे, देन हम छोटे सर्कल का एरिया फाइंड आउट करेंगे, फिर बड़े सर्कल से छोटे सर्कल के एरिया को रिमूव कर देंगे, इट मीन सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सो जो एरिया बचेगा वो आपका रिमेनिंग पोर्शन होगा, क्लियर। सो फर्स्ट आर रेडियस इज़ 4 सेंटीमीटर। जो आपका बड़ा आउटर सर्कल है उसकी रेडियस है 4 सेंटीमीटर। इनर रेडियस ऑफ द सर्कुलर शीट इज़ 3 सेंटीमीटर, क्लियर। रिमेनिंग पोर्शन का एरिया फाइंड आउट करने के लिए हम आउटर सर्कल के एरिया से इनर सर्कल के एरिया को रिमूव कर देंगे, इट मीन सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सो आपका जो आउटर सर्कल है इसका एरिया होगा पाई आर स्क्वायर। ओके, सो पाई की वैल्यू 3.14। ओके, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने ऑलरेडी हमें दिया है कि पाई की जगह आपको लिखना है 3.14 एंड 3.14 कहाँ से आया है? 22/7 को जब आप डिवाइड करके देखेंगे तो आपका 3.14 ही आएगा। ओके, सो पाई की जगह आ जाएगा 3.14। आर आपका है 4 सेंटीमीटर, सो आर का स्क्वायर 4 × 4। ओके, एंड माइनस pi r square for inner circle. So this time your radius is 3. So 3.14 multiplied by 3 multiplied by 3. Clear? So now solve it. You will get 50.24 and solve it. Then you will get 28.26. Now just subtract 50.24 and 28.26. Okay, and you will get 21.98 centimeter. It means the remaining portion, that's area is 21.98 centimeter square. Okay. Now come to the next question, that is your question number 6. Saima wants to put a lace on the edges of her circular table cover of a diameter 1.5 meter. साइमा जो है वो एक सर्कुलर टेबल के कवर में साइड से कॉर्नर में लेस लगाना चाहती हैं और जो सर्कुलर टेबल है इसका डायमीटर है 1.5 मीटर। इट मीन्स उसकी रेडियस होगी 1.5/2। नाउ फाइंड द लेंथ ऑफ द लेस रिक्वायर्ड। अब आपको फाइंड करना है कि उसको कितनी लेस चाहिए उसके आउटर सरफेस में लेसिंग के लिए, एंड ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट इफ़ 1 मीटर ऑफ लेस इज़ 15 रुपीज़। अगर 1 मीटर लेस 15 रुपीज़ की है तो उनको कितनी अमाउंट की लेस परचेज करनी है आपको ये भी फाइंड आउट करना है, क्लियर। एंड फॉर पाई यू विल टेक 3.14। ओके, सो क्योंकि आपका जो टेबल है उसके बाउंड्री में मतलब उसके चारों तरफ लेस लगनी है, सो इसके लिए हम फाइंड आउट करेंगे सरकमफेरेंस। ओके, सो our diameter is 1.5, so it means our radius is 1.5/2. so circumference is 2πr. okay, so pi की जगह आपका आ जाएगा 3.14 and r की जगह आपका आ जाएगा diameter/2. so here is your solution.
2 मल्टीप्लाई 3.14 मल्टीप्लाई 1.5 अपॉन 2. ओके, फॉर्मूले में 2 की जगह 2, पाई की जगह 3.14 एंड इन प्लेस ऑफ r just write 1.5 upon 2. Now just solve it. Okay, 2 cancel out. Now multiply 3.14 and 1.5, you will get 4.71 मीटर. इट मीन्स आपको 4.71 मीटर लेस चाहिए टेबल के चारों तरफ लेसिंग के लिए. ओके, अब 1 मीटर की कॉस्ट है 15 रुपीज़. सो 4.71 की कॉस्ट कितनी होगी, 4 मीटर 71 सेंटीमीटर की कॉस्ट कितनी होगी. सो जस्ट मल्टीप्लाइड बाय 15. सो व्हेन यू मल्टीप्लाई 4.71 बाय 15 यू विल गेट 70.65. इट मीन्स उन्हें 70 रुपीज़ 65 पैसे की लेस खरीदनी होगी. ओके, सबसे पहले हम टेबल का सरकमफेरेंस फाइंड आउट करेंगे. वो आपका होगा लेस का लेंथ और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 15 से, क्योंकि 1 मीटर है आपकी 15 रुपीज़ की. Now come to the next question, that is your question number 7. Find the perimeter of the adjoint figure which is semicircular including this diameter. So फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द एडजॉइंट फिगर. इट मीन्स आपको इस फिगर का पेरीमीटर फाइंड आउट करना है विच इज़ अ सेमी सर्कुलर इंक्लूडिंग इट्स डायमीटर, जिसकी शेप जो है वो सेमी सर्कुलर है. सेमी सर्कुलर मीन्स सर्कल का हाफ, और आपको इसको डायमीटर को भी इंक्लूड करना है. ओके, सो हियर योर डायमीटर इज़ 10 सेंटीमीटर एंड आपको इसका निकालना है पेरीमीटर. ओके, आपके पास एक सेमी सर्कल है, आपको इसका पेरीमीटर निकालना है और इसमें आपको डायमीटर भी इंक्लूड करना है. ओके, सो योर डायमीटर इज़ 10, इट मीन्स इसकी रेडियस होगी 5. क्लियर. सो अगर ये सर्कल पूरा होता तो इसका हम सरकमफेरेंस किस फॉर्मूले से निकालते, 2 पाई आर. क्लियर. बट ये सर्कल है आपका हाफ. ओके, तो हम फॉर्मूले का भी कर देंगे हाफ. 2 से 2 कैंसिल आउट, तो हाफ सर्कल का आपका फॉर्मूला होता है पाई आर. ओके, सो जो आपका ये कर्व पोर्शन है इसका अगर आप सरकमफेरेंस कहें या पेरीमीटर कहें या ये कितने लेंथ का है, अगर आप ये फाइंड आउट करना चाहते हैं तो आप फॉर्मूला यूज़ करेंगे पाई आर. और कैसे करेंगे मैंने आपको बता दिया है. आपका कंप्लीट सरकमफेरेंस होता है 2 पाई आर, तो सरकमफेरेंस का हाफ होगा 2 से 2 कैंसिल पाई आर. सो अगर आप इस कर्व्ड लाइन की लेंथ फाइंड आउट करना चाहते हैं सो आप फॉर्मूला यूज़ करेंगे पाई आर. सो व्हेन यू पुट द वैल्यू ऑफ पाई एंड आर, सो यू विल गेट 15.71 सेंटीमीटर. इट मीन्स जो आपका एक कर्व्ड पोर्शन है इसकी लेंथ है 15.71 सेंटीमीटर. अब इसमें हम 10 ऐड कर देंगे क्योंकि ये पोर्शन भी हमें पेरीमीटर के संग इंक्लूड करना है, जैसे कि यहाँ पे मेंशन है ऑलरेडी. ओके, सो 15.71 प्लस 10 दैट इज इक्वल टू 25.71 सेंटीमीटर. ओके, सो द पेरीमीटर ऑफ द सेमी सर्कल इज 25.71 centimeter. Now come to the next question, that is your question number 8. Find the cost of polishing a circular table top of diameter 1.6 meter. आपके पास एक सर्कुलर टेबल है जिसका डायमीटर है 1.6 मीटर. अब आप इस सर्कुलर टेबल के ऊपर पॉलिश करना चाहते हैं. क्लियर. सो इसके लिए हमें क्या फाइंड आउट करना होगा, एरिया, क्योंकि हम पॉलिश कॉर्नर में तो करेंगे नहीं, हम पॉलिश तो अंदर करेंगे. ओके, कॉर्नर में भी करेंगे बट बेसिकली हम इसमें एरिया फाइंड आउट करेंगे. ओके, एरिया में आपका कॉर्नर्स भी इंक्लूड हो जाएंगे. नाउ नेक्स्ट इज इफ़ द रेट ऑफ पॉलिशिंग इज़ ₹15 पर मीटर स्क्वायर, और 1 मीटर स्क्वायर में पॉलिशिंग करने का जो रेट है वो है 15 रुपीज़. ओके, सो आपको इसके रेट भी फाइंड आउट करने हैं कि पॉलिश करने में कितना पैसा लगेगा. So here your diameter is 1.6 meter. So your radius is 1.6 upon 2. Diameter का हम आधा कर देंगे. So 1.6 upon 2 that is equals to 0.8. So आपका जो रेडियस है वो है 0.8 मीटर. इट मीन्स आपका जो टेबल है उसकी रेडियस है 0.8 मीटर. अब इजीली हम इसमें एरिया फाइंड आउट कर लेंगे पाई आर स्क्वायर से. सो पाई इज 3.14, क्योंकि हमें ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन है 3.14 लेना है. जिन क्वेश्चंस में पहले ही मेंशन होगा कि पाई की वैल्यू आपको ये लेनी है तो आपको 3.14 ही लेनी होगी, अदरवाइज आप 22/7 लेंगे. ओके, सो 3.14 रेडियस दैट इज 0.8. सो 0.8 मल्टीप्लाई बाय 0.8. ओके, सो जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे सो आपका आंसर आएगा 2.0096 मीटर स्क्वायर. इट मीन्स आपको
2.0096 मीटर स्क्वायर के एरिया को पॉलिश करना है। अब 1 मीटर स्क्वायर है 15 रुपीज़ का, तो इतने में कितना लगेगा आपको? 15, अगर 1 मीटर स्क्वायर का है तो 2.0096 मीटर स्क्वायर में कितना लगेगा? इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 15 से, ओके, एंड यू विल गेट 30.14। इट मीन्स आपको 30 रुपीज़ 14 पैसा पे करना होगा पॉलिशिंग का। क्लियर? So students, that's it for today. That is your question number 8, and in this session we will discuss only question number 1 to 8. Other question we will do in the next session. Till then, please watch this video carefully, okay, and understand it. After that, complete your notebook work. If you have any confusion, then comment me in the comment section, okay. So for proper understanding, watch this video at least 2 times. After that, complete your notebook work. But if still you have any confusion, comment me in the comment section, okay. Thanks for watching this video. Have a nice day. Take care. Bye bye.